very warm good evening to you all. My name is Royce Narshid, Vice President of Team Doubt, and this is the moment that you've been waiting for. Welcome to Weekends with TD. This lockdown is really taking a toll on all of us. Our life is stuck, and we are just going through a very tough time. So, to bring some light to your gloomy and dark evenings, we here at Team Doubt has taken this initiative to bring you a complete dose of entertainment, laughter, and upbeat vibes to lift your mood to cloud nine. And tonight we have two talented young individuals who have made their name in Pakistan's public speaking and comedy circuit. So without much further ado, let's get on with our first segment, Intro Mic. So our first guest of the show likes to be called The Rock. Bala, Ballu, Bal, Ba, B. Am I leaving something else? I hope not. Anyways, so he's a prominent member, he's a prominent speaker in Pakistan debating circuit, the president of Tabani's Literary Society. So please help me welcome the samosa eating, Shabana loving, and I don't know why I'm speaking like this, but if you smell what Balaj is cooking. Assalamu alaikum Balaj, how's it going? चाहता हूं मैं एक घर बसाना मेरे सामने वाले घर वेस्टर्न रिसर्च में थे और मेरा ख्याल है ये शबाना के होने से बहुत बेहतर है कि रॉयस्टन मेरे साथ हो. Thank you so much for this honor, Balaj. How was your quarantine going? क्वारंटीन वेंट ग्रेट. जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बड़ी परेशानी थी कि क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था. इसी दौरान एग्जाम्स कैंसिल हुए, चीजें चलती रही. मेरा ख्याल है ये शायद स्ट्रेस रिलीजिंग एक पहली अटेम्प्ट थी कि घर वाले बोल रहे थे अच्छा एग्जाम नहीं हो रहे और इसी सोच में थे कि आफ्टर वी कम आउट ऑफ द क्वारंटाइन क्या कोई नई स्किल होगी, क्या कोई नया टैलेंट होगा जिसके साथ हम बाहर आएंगे, कोई नई सोच होगी. तो लेट्स सी क्या बनता है. अभी तक आई थिंक वी आर पार्शियली इन लॉकडाउन, वी आर पार्शियली इन क्वारंटाइन और बस स्ट्रगल जारी है. ऑलराइट, सो कुछ नया सीखा आपने इस लॉकडाउन में? मैंने क्रिकेट सीखी. रॉयस्टन मुझे क्रिकेट नहीं आती थी कभी और आई हैड अ ड्रीम ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. तो हमारी छत पे हमने नेट्स वगैरह बांधे एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. पहले हम वन टिप खेलते थे, लाइक वी जस्ट यूज्ड टू थ्रो बॉल. लेकिन उसके बाद हमने प्रॉपर पेंट किया, पिच बनाई, रन अप बनाया. अब हम भाग के बॉल कराते हैं. आई थिंक इट्स हेल ऑफ अ फन. मैंने बचपन में जो है ना स्ट्रीट क्रिकेट मिस किया, मैंने नहीं खेली, मैं नहीं खेल पाया कुछ वजूहत की बिना पर. बट आई थिंक कि इस क्वारंटाइन ने मुझे मेरा बचपन वापस किया एंड आई प्ले क्रिकेट. हम कजन्स और चाची वगैरह घर वाली, बिकॉज वी आर अ जॉइंट फैमिली, तो हम 8-10 लोग माशाल्लाह साथ रहते हैं जो खेलने के काबिल हैं. तो हम एक अच्छा टाइम गुजरा. मेरा तो पिछले 3 महीने एक ये नया स्किल सेट मैंने सीखा कि आई कैन नाउ बॉल एट अ वेरी फास्ट पेस. माशाल्लाह, वेरी गुड फॉर दैट. आई वुड से दैट इज वेरी हाईली कमेंडेबल. बस एक छोटा सा सवाल है, मोहल्ले की आंटियां शोर नहीं करती? बॉल जाती है तो करती हैं थोड़ी सी, लेकिन हम लिफ्ट नहीं कराते. हम जो है ना, हमने नेट्स वेट्स बांधे में तो बॉल अब नहीं जाती. पहले शोर जब 1-2 दफा हुआ ना, फिर हमने नेट्स वेट्स बांध लिए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब शोर नहीं मचाती. चलो, दैट इज वेरी नाइस. हमें बहुत गालियां सुनने को मिली बचपन में. हाँ, ओके. Yeah. So what are your expectations from this show? What are you actually expecting? If Royston is on the screen, so I expect charisma. If Daud is on backstage, so I expect perfection. If Ajmal Zubair is with me, so I'll expect comedy, humor. These are the things I expect from this show. तो मेरा ख्याल है कुल मिला के हम जो आज 6-7 लोग हैं, it's more like a Expo 17 and Expo 18 and Karachi knows. And this is something I expect, and this is what Karachi expects now, not me, right? So, keeping high expectations, let's move on to our next guest. He is one of the uprising talents of Pakistan stand-up fraternity. He is called the Aquaman of laughter by some people, and some people call him Bha. So, ladies and gentlemen, please welcome the most eligible Maiman bachelor, who is known for no reason, Mr. Ajmal Zubair. Ajmal Zubair,
करो हाला है। अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट, क्या है? वालेकुम बलाज अस्सलाम। सलाम, बलाज सर क्या हाल है? सर कैसे आप हैं बताएं आप? सर, कैसे हैं आप? आप इतनी जबरदस्त इंट्रोडक्शन का थैंक यू सर जी। और ये कोई मतलब मेरे लिए तो ये फिक्र लम्हा लम्हा फिक्रिया है कि मुझे जो है ना सभी भा बुलाते हैं। तो उम्मीद है कि 3-4 साल में ये ट्रेंड थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छा, एक ये मसला ये बलाज की वजह से हुआ है। ये बलाज ने शुरू किया था। मैं असल में मेमनी में भाई को कहते हैं भा, तो मेरी आदत थी कि मैं दूसरों को भी भा बोल देता था। फिर जब जी सामने से भा आना शुरू हो गया, अब फिर जिनको मैं बात भी नहीं करता वो लड़कियां भी बदतमीजी करते हुए भा बोल के जा रही है मुझे। तो ये एक अच्छा, मैंने इसको नाम दिया, और जो लाफ्टर वेव्स वाला क्वाइन है ना, ये भी मैंने किया था। जी जी ये उस वक्त किया था जब हम टीएलएस का एक इवेंट करवा रहे थे, और वहां भा की वीडियो जो टीएलएस के पेज की अगर आप इनसाइट्स देखें ना, तो आज तक की जो सबसे कामयाब सक्सेसफुल हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रीच है ना जिस वीडियो की, दैट इज द भाज वीडियो जो इन्होंने टीएसए के ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया था। तो वहां उसका कैप्शन था द एक्वामैन ऑफ लाफ्टर वेव्स, एंड आई गेस के इट्स और वो भा उस पर चीज पर उतरे। माशाल्लाह, इनके मौजे मारते हैं ये बड़े जबरदस्त तरीके से। exactly. No doubt Ajmal is very exceptional when it comes to performing. Hats off to him. So Ajmal, anything new did you do in your lockdown? कुछ नया सीखा आपने? कुछ नया किया आपने? नहीं यार, कुछ नया नहीं सीखा मैंने बिल्कुल टाइम जाया किया है। और अभी तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, लास्ट 14 दिन गुजरे हैं, मुझे कोरोना हो गया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन है मेरा, तो अब मैं बिल्कुल बाहर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यार। तो बस ये है कि एक फायदा हुआ कोरोना का कि मेरी बहन मुझे कोई काम का मना नहीं कर सकती थी। तो हाँ, ये तभी मुझे कुछ दिख रहा है। हाँ, कुछ मुझे दिख फायदे रहा भी है, हुए। बहुत नेटफ्लिक्स चल रहा था। हाँ। तो नहीं ये नहीं यार बट कुछ नया तो नहीं सीखा, बस ये है कि हाँ, मूवीज वगैरह ड्रामे वगैरह काफी नए नए सीजन देखे मैंने। जैसे मैंने काफी तारीफ सुनी थी दी ऑफिस की, वो मैंने इसमें शुरू किया और बहुत मजा आ रहा है मुझे, मैं अभी भी देख रहा हूँ। चलो, that is very nice. And first off, a very much I would say a salute to you that you overcame Corona, ठीक है, and you fought through it and you're going through it very well. So hats off to you for that, ठीक है. तो खुद ही खुद हो And गया यार, खुद ही हो ये गया, तो चीज है अल्लाह का exactly. शुक्र है। अच्छा ये है ना, इसमें भी जो है ना कुछ होता है जिसको ज्यादा हो जाता है, किसी को कम होता है, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना कोई 2-3 दिन खाली जो है ना बेचैनी रही, बस इसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके। बट थैंक यू यार। नहीं hats off to you for that, man. Chalo, let's move on to our next segment, which is the hot talk. In this, I'll be asking you some hot talk. Hot It's talk. Umair Rashid is also AWK. joining us. I hope so. I hope not. No. I just heard dog. Sorry. It's hot also. No. Umar can't. Exactly. Ajmal, it is hot talk. TAWK. All right. Oh, I am sorry. मैंने यही कहा ना, मैंने गलत सुना। मैं बस मतलब कुत्ता सुना मैंने। If the word is hot, then I think Umair Rashid still qualifies for this segment. Not hotter than me, Balaj. You know that. So you are in it, bro, already. Exactly. मैं इस कन्वर्सेशन में क्या पार्टिसिपेट करूं? एंड में भाई बोल देना मुझे। Anyways, ठीक है. So what I'll be doing is I'll be asking you some personal questions about your life and how you got there where you are today. ठीक है. Let's start with Balaj. Okay. Balaj, as some sources say that you were very shy and a timid guy in your high school and your colleges. And your voice was not as deep as husky as it was, ठीक है, और इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपके वॉइस का, just so you know. तो आपने बहुत सारी criticism और bullying भी फेस की है, तो how did you cope up with that? What kept you going exactly? Rashid, I don't think that I did anything. I went with the flow. जो चीजें लेके जा रही थी वो चल रही थी। मुझे याद पड़ता है कि जब उस वक्त ना 2G होता था एंड 2 MB के पैकेज होते थे जिस पर आप फेसबुक चला सकते थे, और वो भी बड़ा माठा सा फेसबुक होता था। तो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू कॉल द कॉल ऑपरेटर, और ऑब्वियसली ये बुलिंग नहीं होती थी, तो ही यूज्ड टू से कि जी मोहतरमा फरमाए। मैं फोन काट देता था, मैंने कहा इसको क्या बताऊं कि मैं मोहतरमा नहीं हूँ। एंड द सेम वे आई यूज्ड टू, मैं अगर सुबह अपने वैन अंकल को कॉल करता था कि अंकल आप कहाँ पहुंचे, तो ही यूज्ड टू थिंक माय मदर इज टॉकिंग, और वो कहा करते थे कि आंटी बलाज को नीचे भेज दें। सो अगेन इट वाज वेरी शैटरिंग। यस, आई हैव फेस्ड बुलिंग ना,
जो सीनियर लड़के होते थे, दे यूज्ड टू कम एंड दे वो सर्कल बना के दे यूज्ड टू से यार आवाज सुना। एंड मुझे याद है कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉक टू अ शॉप ना, अपने इलाके के लोगों को तो पता था, उनके सामने तो मैं पला बड़ा था, तो दैट डजंट इट मैटर, इतना कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन किसी नए इलाके में जाऊं, ननिहाल के इलाके में जाऊं, तो वहां मुझे एक्सपेक्टेशंस होती थी कि मैं इससे कोई चीज मांगूंगा और ये बंदा चीज देने से पहले हंसेगा। आई न्यू इट, आई वाज ऑलवेज रेडी फॉर द लाफ्टर ना, कि मैं, मुझे पता है मेरी, क्योंकि मेरी कद काट, मेरी जिसामत बड़ी थी, मैं हेल्दी था, बट माई वॉइस, मेरी आवाज लड़कियों वाली नहीं थी, बच्चों वाली थी। बट एक पॉइंट होता है जहां बच्चों की और खवातीन की आवाज में इतना फर्क नहीं होता। आज भी बच्चों की आवाज जो है खवातीन डब करती है मूवीज में। तो एट दैट टाइम दिस वाज द क्रिटिसिज्म। बट 8वीं क्लास में एक टाइम आया कि लोगों, अच्छा पंजाबी में इस चीज को कहते हैं कुंडी फटना। दे आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड ना, मर्दों की उनकी आवाज बदलती है, भारीपन आता है। मेरा भारीपन नहीं आया था, बट लेटर आई फिगर्ड आउट कि आई हैव अनदर वॉइस। यानी लोगों की आवाज कन्वर्ट होती है, मेरी आवाज कन्वर्ट नहीं होती। आई हैड टू, एक बच्चों वाली, एक मर्दों वाली। बट 7वीं 8वीं क्लास में आई वाज टू यंग फॉर दैट वॉइस। वो यही आवाज थी जिसमें मैं भी बात कर रहा हूँ। तो 8वीं क्लास के बच्चे से आप ये आवाज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं बीच की बिल्ली बन गया ना मैं उस आवाज में बात कर सकता हूँ, वो बहुत बचकाना है, ना इस आवाज में बात कर सकता हूँ क्योंकि बहुत मर्दाना है। देन इन क्लास 9th, जब मेरा पहला दिन था, अच्छा मैं क्लास में ना पढ़ता नहीं था, और पढ़ने से मुराद मैं रीड आउट नहीं करता था चीजें, जिस तरह बच्चे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चलते हैं ना, या असेंबलीज में कुछ पढ़ते, तो आई डोंट यूज टू, मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था लोग हंसेंगे और लोगों को समझ नहीं आएगी। बट दैट डे नए टीचर्स थे, नए स्टूडेंट्स थे, तो मिस ने बोला आप पहली लाइन से पढ़ना शुरू करें। एंड आई थिंक दैट वेरी सेकंड ना वाज माय लाइफ चेंजिंग। मैंने सोचा था कि बल आज नई टीचर है, नए बच्चे हैं, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। और वहां वो जो मैंने पहली लाइन पढ़ी थी ना, मैंने अपनी इस मर्दाना आवाज में पढ़ी थी, एंड एट दैट डे मेरी आवाज और ये सब चीजें फिर बदली, मेरी जिंदगी बदली। फिर उसके बाद वो आवाज अभी भी है कहीं अंदर, मैं आपको कभी अकेले में सुनाऊंगा। तो ये चक्कर है। फिर उसके बाद आई फील कि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, ये जो आवाज है मेरी। बहुत सी चीजें, मेरी तकरीर अच्छी हो ना हो, बट लोग जरूर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि योर वॉइस, योर स्पीकिंग इज वेरी गुड। तो आई थिंक कि शायद अल्लाह से गिले नहीं किए, शायद गलत बात नहीं की, वेंट विद द फ्लो, अल्लाह की मर्जी में राजी रहा, तो उसने तोहफा अता किया। एग्जैक्टली, अल्लाह का जितना शुक्र करे उतना कम है भाई। बिल्कुल, नो डाउट। चीज आपकी बहुत अच्छी है कि दैट यू आर ऑलवेज हम्बल, दैट यू ऑलवेज बीन वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, एंड यू नेवर गेट प्राउड फॉर एनीथिंग। So this is a very good thing that I find about you. थैंक यू, थैंक यू। Okay, my next question to you is अजमल। अक्सर लोगों के पास स्पीकिंग की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कभी वर्ड सही से नहीं आते, और इवन दो आप इंथुजियास्टिक होते हैं बहुत सारे, और आपकी टैलेंट जो है स्टेज पर दैट इज एक्सेप्शनल, वेदर इट बी डिबेटिंग, एक्टिंग या फिर स्टैंड अप। लेकिन कोई ऐसा मोमेंट आया था दैट टाइम दैट यू हैड अ स्टेज फ्राइट या फिर इनसिक्योरिटी या फिर ऐसा कि लोग क्या कहेंगे? यार ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि मैंने जो है ना पब्लिक स्पीकिंग में जो थोड़ा भी मेरी जर्नी रही ना, मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो स्टार्ट करने से पहले 1 साल पहले तक जो है ना मैं इन पब्लिक स्पीकर्स के साथ ही घूमता था, जैसे बलाज है, अली है। और जो मैं फर्स्ट टाइम भी जब मैं गया था TV1 तो मुझे बलाज ही लेके गया था। बट ये हुआ कि हाँ मतलब ऐसा डर तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा है किल कर बॉम्ब करके आया, मतलब जाके मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। तो अब वो जैसे एक यही वाला सीन बलाज के साथ भी हुआ है, जब ये सुना रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे साथ ये हुआ सिटी कोर्ट में, सिटी ऑडिटोरियम था सिटी कोर्ट के अंदर, वहां पे तकरीर थी। तो अब वहां मैं तकरीर भूल गया, तो अब वो क्राउड अच्छा था तो वो क्लैप कर रहा था, आपको सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने जेब से पर्चे निकाले। अब मैं वो इतना ज्यादा लापरवाह था कि मैंने वो पर्चे स्टेपल भी नहीं किए थे। वो 4 पर्चे थे, वो चारों गिर गए, जिसमें जो चौथा पर्चा नीचे गिरा जो पहला पर्चा था। अब मैं उसको उठाने भी घुसा, फिर नीचे झुका। फिर जब वो पहला पर्चा उठाया तो ये सेम सीन बलाज के साथ भी हो गया, मेरे साथ भी उसी दिन हुआ कि वो पर्चा उल्टा था। अब मैंने फिर उसको यूं सीधा किया। फिर जब वो तकरीर जब तक शुरू की ना, तब तक फ्लो पूरा मतलब 2.5 मिनट तो मुझे इसी में लग गए। तो मेरी जिंदगी की सबसे वर्स्ट जो है ना वो सीन वहां था, जिसके बाद मैं वहां बैठ भी नहीं सका। इसके बाद अल्लाह का शुक्र है कभी स्टेज पे मैं भूला नहीं। हाँ, अभी रिसेंटली ग्रैंड कम्यून के अंदर है ना स्टैंड अप करते हुए मैं एक जोक पे स्टक हो गया था, मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा था, तो उस वक्त दिमाग चल गया। उस वक्त मैंने ये किया कि मैंने जो है ना बोला, मैंने कहा कि अगर आप कभी आईकैप में एग्जाम दे रहे हो और आप
आंसर भूल जाएं तो कितनी मजे की बात हो कि आपको जेब में हाथ डाल के ऐसा आंसर देखने की इजाजत हो, और मैंने अपना सेट देख लिया और कंटिन्यू करना कर दिया जो। तो लोगों को जिसको समझ आ गई कि मैंने भूल गया था वो तो ज्यादा ही इंप्रेस हुआ, जिसको नहीं समझ आई वो समझा कि मैं नॉर्मल कंटिन्यू चल रहा हूँ, तो इस तरह कवर हो गया। तो अब ये एक एक्सपीरियंस से मुझे आ गया कि भूल जाओ तो किस तरह कवर करना है और किस तरह जाना है। शुरू में हाँ थोड़ा प्रॉब्लम काफी होता था। Exactly, it's the experience that counts, no doubt for that. Okay, guys, this question is for both of you. All right, in 5 words, ठीक है, in 5 words, describe what makes a good speaker. Ajmal, you go first. 5 words में ये बताएं what is a good speaker. Confidence, content, body language, अदायगी, and पांचवी चीज is I think support. True. ये सारी चीजें. Balaj, what do you think? 5 words that makes a good speaker. 5 words. I think 5 steps are enough. वो जो आपके सीट से उठ के स्टेज तक जाने के जो 5-7 कदम है ना, that makes you a speaker. If you're confident in that ना, then you भले उस दिन भूल जाओ, but if you're confident in that walk ना, you leave an impression. Exactly. Because those are the 5 steps that you make from your seat to the podium. Right. So according to you, it all depends on your personal the way you handle yourself. That's what you're saying. Yes, your personality, the way you carry yourself. Good, understandable. Okay, my next question for you guys is कि आजकल depression is at its peak, all right, and we have seen that recently many people were suffering from it and many people left us as well. So what is your defense mechanism for depression? Like for example, if I feel depressed, I would always listen to music. So what do you do if you ever feel depressed? Accept it. Okay, acceptance and moving on. If there is acceptance now, then the very next step would be कि आप उसका कुछ हल करो. That maybe if Roshner says ना कि मैं music सुनता हूँ for depression, which means he accepts it's first कि भाई मुझे depression है, अब मुझे music सुनना चाहिए. जो बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, जिसको लगता है कि यार नहीं बस मेरी जिंदगी यही है, ये फेज नहीं है, ये बस है ही हुई मैं ऐसा, आई थिंक उसके लिए ज्यादा मसला है. जो बंदा एक्सेप्ट कर लेना कि यार ओके दिस इज द रॉन्ग टाइम, दिस इज द रॉन्ग फेज, बट अल्लाह विल हेल्प मी, माय फैमिली इज देयर, आई कैन गेट आउट ऑफ इट इंशाल्लाह. तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड आफ्टर दैट फिर आप अपनी रेमेडीज करते हो टू गेट आउट ऑफ इट. गुड. अजमल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? यार मैं ये बताऊंगा मैं किस तरह ओवरकम, मतलब दोस्तों में चला जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देख ली, कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, तो क्या माइंड फ्रेश हो जाता है. और जितना हो सके आदमी बिजी, मेरे हिसाब से कि खुद को बिजी कर लेता है, तो नहीं फिर ज्यादा जो है ना इतना फील होता. गुड. तो मेन चीज यही है कि यू नीड टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड यू नीड टू कीप योरसेल्फ प्रीऑक्यूपाइड सो मच कि आप भूल ही जाओ कि आपको डिप्रेशन. एग्जैक्टली, ये भी एक स्ट्रेटजी एक ही हुआ. Exactly, because the thing is कि आजकल इतना जो इशू क्रिएट हो रहा है, तो people need to know कि what are the options actually. कुछ लोग तो आधे से ज्यादा what I feel is कि डिप्रेशन में इस वजह से चले जाते हैं, first off that they don't accept it, denial होता है. Exactly, it is there. Second चीज ये होती है they don't know what exactly to do, कि overcome करना है तो करें कैसे. So it is very good, at least people get to know कि what actually can you do. You giving them options कि yes, there is and some options that there are ways that you can overcome it. So that is a very good thing. एक और क्वेश्चन मेरा, ठीक है. If you were to switch bodies for a day, like अजमल की बॉडी के अंदर बलाज है and बलाज की बॉडी में अजमल है, दो अजमल हो गए, सॉरी, हाँ दो अजमल है, ठीक है. तो what is the first thing that you'll do? अजमल क्या करोगे? मतलब मैं बलाज बन गया हूँ ना पूरा. हाँ, exactly, honest answer. बलाज तो इतना एम्बेरस कर दूंगा कि अगला दिन उसका अजाब हो जाएगा. मैं ऐसी हरकतें करूंगा, बलाज को ऐसा बदनाम करूंगा जैसे कि जो है हाँ दोबारा अपनी बॉडी में आ ही सकेगा. जैसे कुछ भी जैसे एसटी को फोन करके कोई अजीब सी बातें कर ली, या फिर जो है ना एसटी शरीफ तवानी जो हमारे प्रिंसिपल है, मतलब सर, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें फेसबुक से मतलब इतना एम्बेरस मैं अक्सर बलाज को करता भी हूँ. बलाज बताएगा, जैसे कभी चाय के होटल के ऊपर जो है ना जोर से चीख दिया तो बलाज चेहरा छुपाएगा अपना, इस तरह की हरकतें. तो मैं ये करूंगा.
और बलाज बहुत जल्दी एम्बेरस्ड हो जाता है। बलाज जो है ना, जैसे अगर वेटर को अगर मैं जैसे खाली यूं ही मजाक में भी अगर वेटर को हमने को इस तरह की बात करके चीखा ना, तो बलाज अपना चेहरा छुपाया, और जब बलाज हंसना शुरू होगा तो वेटर पर उस चीज से जो है ना ज्यादा परेशान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बलाज की हंसी इज नो डाउट समथिंग जो कि कोई भूल नहीं सकता है। बलाज, व्हाट वुड यू डू? और टू ट्राई टू नेमन घर में भाई, आई विल मेक अ लॉट ऑफ खौसास। मैं बोलूंगा भाई खौसे लाओ एक ही दिन खाने, बस खौसा खौसा। मुझे लग रहा है अजमल जुबैर का जो पेट है वो इसी तरह बाहर आ गया है खौसों की वजह से। हाँ, नहीं ये तो हम ये बोलेंगे देखो, भाई। ये इसकी ये वाली सोच ही है, तभी अजमल से 2 बलाज के अंदर आ जाएंगे। ट्रू राइट ट्रू ट्रू। राइट राइट। ओके गाइस, आप लोग अक्सर बलाजू हाँ शबाना को बहुत ज्यादा आप याद करते हैं, ठीक है? हाँ। एंड अजमल जो है इकरा यूनिवर्सिटी हमेशा उनकी जोक्स का बट होता है, ठीक है? तो ऐसा एग्जैक्टली क्या है कि व्हाई डू यू गाइस ऑलवेज चूज? जब मेरी पहली तकरीर थी ना एट सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, तो वहां जो मेरा पहला जोक था ना, दैट वाज अबाउट शबाना के सदर अली वगार, जरा सोचिए कि एक हसीन शाम हो, आपके साथ हो, शबाना खा रहे हो खाना हो। तो आफ्टर आई वन दैट स्पीच विद गयूर भाई, वी वन द टीम ट्रॉफी, वी वन द इंडिविजुअल पोजीशंस। हम खाना खा रहे थे सर सैयद के, लाइब्रेरी थी जहाँ पे सारी उनकी स्टूडेंट काउंसिल और उनकी टीचर्स हम लोग खाना खा रहे थे। देयर वाज अ लेडी हु केम टू मी एंड सेड के और शबाना, शबाना ने जिता दिया तुम्हें। तो मुझे फील हुआ कि अगर आप किसी कैरेक्टर को फैंटेसाइज कर देते हैं ना, तो लोग फिर उसको पसंद करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फिर तकरीर बलाज से हट के शबाना की हो जाती। तो उसी के अगली जो तकरीर आई कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो मेरे दिमाग में ये सोचती कि आई हैव टू फिट शबाना समवेयर हियर। इत्तेफाक ऐसा हुआ पूरी तकरीर शबाना के ऊपर होगी। तो आई थिंक दैट स्टैंड्स कि भाई वो फिर शबाना 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 इतनी हुई कि अब वो एक बन गई है बस शबाना। दैट वाज द थिंग। मतलब वो अगर उस दिन वो एक आंटी मुझे ना बोलती ना कि शबाना ने तुम्हें तकरीर जिता दी, क्योंकि आई थिंक वो 4 मिनट की तकरीर में से 20 सेकंड शबाना के वाले पंच के और शुरू के थे। अगर वो उस दिन मुझे ना बोलती ना, तो आई डोंट थिंक ये शबाना शबाना इतना होता। उन्होंने बोल के ना मुझे रियलाइज करवा दिया कि ओके, इफ आई फैंटेसाइज अ कैरेक्टर, इफ आई फैंटेसाइज अ जोक ना, तो लोग फिर पिक करते हैं इस चीज को। चले, आपकी एक न्यू फीमेल इमेजिनरी फ्रेंड बन गई, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। हाँ एग्जैक्टली। तो राइट। अजमल, व्हाई इकरा, व्हाई ऑलवेज इकरा? यार इकरा यूनिवर्सिटी पे मैंने कभी मतलब एक ही तरह का एक सेट है, वो काफी टाइम परफॉर्म किया है। मसला ये है कि उसमें फीडबैक बड़ा अच्छा आता है, ऑडियंस एंजॉय करती है। मुझे खुद भी जैसे मतलब ऐसा, अब जैसे मैं कभी भी बोलता हूँ ना, इकरा लफ्ज अरबी का जिसके मायने हैं पढ़ो, एडमिशन ले लिया तो आवाज आई करो, फिर मैं आगे बोलता हूँ डिबेट करो, डेक्लेमेशन करो। तो अब वो ऑडियंस से ही ऐसा खतरनाक रिस्पॉन्स आता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं क्या है, इकरा में पढ़ने वाले बच्चे इकरा के ऊपर जोक्स एंजॉय करते हैं। तो वो एक था, उसके ऊपर एक सेट बनाया था मैंने। अब तो वो जो है ना ऑनलाइन भी कर दिया है, तो अब मैं रिपीट नहीं करता इकरा। अब हम टीएसए पे जोक बनाएंगे। चलो नाइस। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज ये था कि ऑब्वियसली बात है, मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है? एंड दे रियली हैड अ क्यूरियोसिटी कि एग्जैक्टली ये क्या इशू था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी टुनाइट, ठीक है? So from Ikra University, I have Miss Shabana on the line with us today. All right. जी शबाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शबाना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉकडाउन में आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं? देखें, मेरा लॉकडाउन ना बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। उसकी 2 सबसे बड़ी वजूहात हैं जी। सबसे पहली बड़ी वजूहात तो ये है कि ना, आपको पता है सारे पॉलर्स बंद हो चुके हैं। अब देखिए मेरे अपर लिप्स बढ़ गए हैं, तो मेरी ब्यूटी को जो ना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा ये कि मैं ना मैं इन लोगों से मैंने मैसेज करती रही हूँ, इन्होंने मुझे बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं किया। किन लोगों ने? ये जो आपके सामने ये 2 गेस्ट बैठे हुए हैं, इन लोगों ने। बलाज और अजमल, इन दोनों को आप कैसे ये बलाज और अजमल।
देखिए अब मैं आपको अपनी सारी स्टोरी सुनाती हूँ। जी ये बलाज सबसे पहले जब इकरा यूनिवर्सिटी आया ना, तो इसने जब मेरी तरफ ये देख रहा था, ठीक है, ये बात मुझसे कर रहा था और साथ मेरी बहन को देख रहा था। मेरी बहन का नाम है फरजाना, तभी तो ये बार बार कहते रहते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो इसी वजह से लेकिन मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बलाज है ना, मैं इनको प्यार से बल्लू कहती हूँ। बल्लू बल्लू। जी 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 शबी। देखें आपने जो है ना इतना फेमस कर दिया, आपने मुझे इतना फेमस कर दिया कि मैं बता नहीं सकती आपको। और देखें आपने मुझे कहा था ना लास्ट टाइम कि मुझे तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लगते, तो ये देखें मैंने आपके लिए गंजी हो गई हूँ मैं। देखिए आप हंसे नहीं, आप मुझे अप्रिशिएट करें ना, आप मुझे अप्रिशिएट करें। वो बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं कह रहा हूँ आपने गंजपन की शान बढ़ा दी शबाना। थैंक यू। मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। जी बलाज, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इमेजिनरी पर्सन थी, अब आप उनसे शब्बो कह के बात करते हैं, ऐसा क्या हो गया? देखें ये गलत बात कर रहे थे। मैं कोई इमेजिनरी नहीं हूँ इनकी, मैं रियल में हूँ। ये मुझसे बात भी क्या करते थे, अब ये बातें नहीं करते बिल्कुल। इमेजिनरी का मतलब था मेरे ख्वाबों की शहजादी। इमेजिनरी का मतलब था मेरे ख्वाबों की शहजादी। अच्छा, अब बलाज की तकरीर पहले जैसी कभी नहीं आ गई हूँ। अब बलाज की तकरीर पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले शबाना का तस्वुर ही कुछ और था, अब जो है ना वो सब खराब हो गया। बलाज को नया कुछ लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। शबाना, मेरा आपसे एक सवाल है। जी पूछें। शबाना एक सवाल है, चले बलाज को तो आप जानती हैं, ये अजमल आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बार बार इतना क्यों बोलते हैं? ये अभी अजमल को मैं बताती हूँ, ये भी मेरे बारे में बोल रहा था ना, अभी मैं इसको बताती हूँ। ये अजमल जब इकरा यूनिवर्सिटी आया था ना, तो मेरी एक दोस्त है रुबाब, ठीक है, ये असल में उससे बिल्कुल बातें नहीं करता, लेकिन उसकी अपनी तकरीर में हर जगह उसका नाम लेता रहता है। इसलिए ये बहुत नॉटी पर्सन है, मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो इसके दिल में हर चीज रहती है, लेकिन जुबान पे ये सिर्फ तकरीरों में बोलता है। अब वो मुझे कह रही थी कि ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा, मेरी बात कराओ इससे। ये क्लास में तो ये मेरा नाम लेता रहता है, लेकिन ये मेरी बात नहीं कर रहा मुझसे। तो अजमल किधर हो? जी इधर ही हूँ शबाना। तो अब आपने ना सबसे पहले फ्री होके ना उसको कॉल करनी है, वो आपका बहुत इंतजार कर रही है। नहीं, अब मुझे उससे बात नहीं करनी ना। अब आपने जब से बाल कटा है, मुझे आप पसंद आ गई हो। थैंक यू। मतलब आपके बाल भी कटे हुए, आपकी मूंछ भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है, वो मेरा बल्लू। आई एम अ वन मैन वुमन। बस करो बिल्ला। सेंटेंस सही कर लें आप। वन मैन भी बोलेंगे, वन वुमन मैन है ये बेसिकली। वन मैन वुमन नहीं मैन बोले वुमन बोले। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। फील आनी चाहिए। एग्जैक्टली फील आनी चाहिए। वन वुमन मैन हूं मैं। बिल्कुल। तो शबाना आपको याद है आप ग्रैंड ईव में असिस्टेंट डायरेक्टर थी? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। आप मुझे बार बार देखी जा रहे थे, बहुत अच्छी तरह आप घूर रहे थे मुझे। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था वहां पे। शबाना, मैंने सुना है आप तायरुल कादरी उल्टे सीधी रिकॉर्डिंग भेजते थे, क्या भेजते थे? देखिए नहीं, अब आप गलत बातें मत करें। नहीं, मैं सुनना चाहूंगा प्लीज। मैंने सुना है तायरुल कादरी आप उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग में। देखिए कुछ बातें ना पर्सनल होती हैं, वो पर्सनल ही रहने देते हैं, ऐसे पब्लिक में नहीं डिस्कस करते। अजमल जुबैर ऐसी पब्लिक बातें नहीं करते, क्योंकि देखो थोड़ी देर बाद ना कोई काली वीगोस खड़ी हो जाएंगी आपके घर के बाहर, समझ रहे हैं? नहीं टेंशन नहीं है। बहुत अफसोस हुआ सुन के आपकी दुख भरी कहानी शबाना। आखिर में जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए मैं आखिर में ना अपने बल्लू को एक पैगाम देना चाहती हूँ। जी बल्लू जी।
जो भी आपने फेसबुक पे अपनी तस्वीर जी। लगाई है ना, जिसमें आपके आर्म्स इतने ज्यादा मसल आए हुए हैं, आपके पहले तो नहीं थे, आपने मुझे कोई तस्वीर भी नहीं भेजी बाद में। तो ये शबाना आपका इन्होंने राज मुझे क्या भेजी है, और थी। आपने मुझे क्यों डीएम नहीं किया, आपने मुझे तस्वीर क्यों नहीं शबाना भेजी? मैं आपसे नाराज हो गई हूँ। जी, शबाना एक वो चीज वो बताना वो चाहूंगा। तस्वीर रॉयस्टन की है, उसमें मैंने तस्वीर एडिट करके लगाई है। तस्वीर नहीं, आप रॉयस्टन की झूठ है। मत, आप झूठ बोल रहे हो, आप बड़े नॉटी हो, मुझे पता है आपका। शबाना एक बात आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने मुझे ये पर्सनल मैसेज पे ये फोटो भेजी थी। अच्छा, तो देख रही हैं ये आप? आप जी थे? लेकिन जी। नहीं, मेरा बल्लू ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने बल्लू पे पूरा यकीन है। बस अल्लाह ही हाफिज है इनका तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शबाना। आई होप यू गेट द लव ऑफ योर ओके लाइफ। बलाज बल्लू, हाँ कर दें। बल्लू, बलाज कबूल है? बल्लू, सर सर बाय सर, बाय मेरी जी तरफ जी से जी। बल्लू। बल्लू बाय बाय मेरी तरफ से। बाय और अजमल, बाय बाय याद से, बाय। ठीक है, याद से। रुबाब तुम्हारा इंतजार कर रही है, याद से उसको मैसेज करना है तुमने, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाय बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। बल्लू। बलाज अल्लाह हाफिज। और अजमल। अल्लाह हाफिज। बलाज और मैन अजमल। यार अब्दुल्ला कमाल बंदा है यार। मुझे बस एक ही मैंने चीज आप इसने दोनों कोई से कहनी बात ही थी। नहीं की यार। जी मैंने वाकई बलाज। एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, जब मुझे दाऊद ने बोला ना कि सरप्राइज, आई थॉट कि मलिक तौकीर होगा या उमैर रशीद होगा या जैगम होगा, कोई हमारा। जी आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड कि भाई शबाना जो है ये सरप्राइज है मैन। रियली आई एम रियली सरप्राइज। मजा आ गया है। इसके ऊपर बलाज और अजमल आप लोगों को बस एक चीज करके बताना चाहूंगा मैं कि हाँ कैसा दिया। नहीं सही दिया? मैन, सही बहुत दिया। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सोचा इधर रात Alrighty, को मैं 1:30 इस तरह हंसूंगा मेरे जबड़ों में दर्द हो जाएगा यार। बिल्कुल। टू मच टू मच टू मच अब्दुल्ला यार कमाल है। No doubt, no doubt. Very talented member of our team. Okay, वेरी guys, टैलेंटेड। moving on with the next segment, which is Think Fast. Right? Each of you will be asked 5 questions, ठीक है? जिसके सबसे ज्यादा ओके आंसर दोगे he will win, ठीक है? You would have 10 seconds to answer each of these questions, ठीक है? All right, Balaj will start with ओके। you, ठीक है? Okay, Balaj, what is the capital of Uganda? आई थिंक यूगांडा itself is a capital of some country, right? No, Uganda is a country. Okay, I don't know. Okay, it's Kampala. Okay, Okay, anyways, अच्छा, स्पोर्ट्स के आप बहुत बड़े फैन है तो आपको ये पता होगा, what are the 5 colors of Olympic rings? ओलंपिक से होते हैं उसकी 5 रिंग्स होती हैं, उनके कलर्स क्या है? it's green, blue, yellow, red and a black. परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट आंसर। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि आप कार्डाशियंस के भी बहुत बड़े फैन है सुनने में आया है, तो कार्डाशियंस को आपने अरेंज करना है फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, ठीक है? मैं नाम ले रहा हूँ, Okay, मुझे बताइएगा ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। किम okay, कार्डाशियन, क्लो कार्डाशियन, yeah. रॉब कार्डाशियन एंड कोर्टनी कार्डाशियन। काइली जेनर कहाँ गई? काइली इज नॉट अ कार्डाशियन। Kylie is not a Kardashian. I thought she's a Kardashian. अच्छा, किम कार्दाशियन सबसे बड़ी है वजूदी एतबार से, और बाकी तीनों को मैंने देखा नहीं। ठीक, मतलब सो क्या, आई थिंक चलो छोड़े, बाद में बताऊंगा क्यों। वाइल्ड गैस करते हैं, चल वाइल्ड गैस करते हैं। ओके, एनीवेज, सो आई से इनकरेक्ट। सबसे ओल्डेस्ट है कोर्टनी कार्डाशियन, जो उनकी अम्मी है, वालदा है, ठीक है? अच्छा, देन इट्स किम कार्डाशियन, क्लो कार्डाशियन एंड ओके देन उनका भाई रॉब कार्डाशियन। ऑलराइट, ओके ओके। okay, next question. On average, what is the things that Americans do 22 times in a day? कोई एक ऐसी चीज जो कि अमेरिकन करते हैं 22 दफा दिन के। Look at a mirror, I guess. You sure about that? Yes. Wrong नहीं, answer. Opening a fridge.
साफ रखना शो, बलाश मत Oh, बोलो। oh, okay. One time less than me. Yeah, अच्छा, one time less than you. अच्छा. Okay, one time कार्डाशियन less से than याद me. आया, एग्जैक्टली कार्डाशियन से याद आया, गेम ऑफ थ्रोन्स के भी आप बहुत बड़े फैन हैं, तो ये बताएं। No, I haven't watched a You single haven't watched? episode of Game of Thrones. No. बलाश तारक मेहता देखता है। ओह, हाँ, ठीक है। literally. I watched Tarak Mehta. I watched CID. I watched these shows. I watch Nadania. Nadania जो पुराना शो था ना, वो जियो पर आ रहा होता है. I watched that. ठीक, चले फिर आपके लिए एक आसान सवाल होगा, ठीक है। ये बताएं, हाँ. सीआईडी में दया ने कितने दरवाजे तोड़े? दया ने, मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं बता सकता हूँ, मैं लिटरली ये बता सकता हूँ। You cannot use your phone. You cannot use your phone. You cannot use your phone for that. अरे ये बात गूगल पे भी कहाँ होगी यार? I'm using it in front of you. देखो, wait a minute, wait. नहीं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? CID चला है 20 साल, ठीक है? There are 52 weeks in an year, ठीक है? Saturday, Sunday आता था. That means 52 into 2 into 20. Approximately 2080 दरवाजे तोड़े. Correct. 2081 है, but it's the nearest answer. Correct. Literally, seriously, is that Yes. true? Yes. Wow, Yes. man. कभी कभी स्पेशल एपिसोड भी तो होता होगा 2 घंटे का। Exactly. 2 दरवाजे टूटते थे उसमें। अच्छा, वो एक दरवाजा इसलिए कम आ रहा है. Exactly. So Balaj, you're leading with 2 points. ठीक है. Let's Okay. go to Ajmal. Ajmal, best of luck. ठीक है. It's your turn now. एक Thank easy you, सवाल thank लेते हैं, ठीक है. Just because आपकी geography बहुत अच्छी है. ये बताएं, what is the biggest salt mine located in Pakistan? Where exactly? ये वो अपने पाकिस्तान में ही है गोल्ड माइन। मैं शायद नाम गलत बोल दूं लेकिन उससे मिलता जुलता ही, खेवरा। खेवड़ा, exactly correct. हाँ, खेवड़ा आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है. ये बताएं, इंग्लिश के भी आप बहुत बड़े फैन हैं, तो ये बता दें, in English what is the shortest complete sentence? ओके। Correct. नहीं, सेंटेंस नहीं है, करेक्ट है। ओहो, ओके। Okay. Coprastratophobia is the fear of what? पहले ये बताओ ये क्या है? Coprastratophobia. ओपरा सुनने का होगा। Constipation. Incorrect. कॉन्स्टिपेशन। इतना मुश्किल क्यों करते हैं चीजों को? सीधा कब्ज बोले यार। अंग्रेज है ना? Okay. Fourth question. A woman lives in a one-story house in Florida. ठीक है. Her house is pink, and pink is everywhere. What is the color of her stairs? Blue, orange, or pink? It's a one story house. Yes. Correct. बलाज, ये तो जाए जा रहे हैं यार, जीते जा रहे हैं. अच्छा, Aquaman of Laughter, आपके लिए आखिरी सवाल. ये बताएं कि what is Aquaman's human name? उसका human name क्या था? अजमल। Incorrect. Can I Arthur tell? Curry. मैं बता के point ले लूं. That's Arthur Curry. Arthur Curry, exactly, that is correct. So unfortunately, Balaj, our winner for tonight is That Mr. makes my Ajmal point Zubair, 3, right? but still he got 3 points, so he scored more than me. Okay. But still, it was a very good game, very close game, I would say. हाँ. बा मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉफी विद करंट लाइट चल रहा है. मुझे लग रहा है ये सवाल है ना कयानी ने तैयार किए थे, तेरे वाले स्पेशली। यार देखो, मुझे तुम लोग ताहिर शाह कह दो, दैट इज ओके, बट करण जौहर नहीं यार, प्लीज. वो अवैस क्या नहीं कह रहे हैं. बात सेम नहीं हुई. अवेश कयानी, करण जौहर, डिफरेंस है कोई? नहीं, करण जौहर थोड़ा बेहतर है यार. चलो. Monkani, man. Exactly. So guys, it's been a great pleasure and honor to have you guys over here at Weekends with TD. I hope you guys have fun. And if there is anything you would like to say about your experience, please feel free to do so. Balaj, the stage is yours. The same way जो मैंने शुरू में कहा कि when Royston is here, you expect charisma, so तो आप expectation पर पूरा उतरे. If Ajmal is here, we expect humor, so that is humor was everywhere. If Daud and his team is here, so obviously we expect perfection, and that was here.
And if we expect Abdullah here, so obviously then you can see that's a tremendous set of performance, right? So it was a great show. It was an honor being here with you people जिनके साथ चीजें start हुई. I think रोस्टन को ये बात इस शो में जरूर बतानी चाहिए थी कि the first ever speech I was going for TSA, Royston was with me in that, and we were in the conference room and we shared that moment, and after that a lot of bigger moments. So yeah, I think this thing had to be disclosed. Royston is with me, is with us since day one. Exactly. Thank you so much for that, man. It's been a real pleasure and an honor to be with you throughout this place. Ajmal, what was your experience like? मैं भी थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, बहुत मजा आया। और अल्लाह करे ये जो तुम आगे पूरी सीरीज जो होगी अभी, ये जो वीकेंड्स विद टीडी है, ये और अच्छे अच्छे एपिसोड हों और मजा आए। और जो भी टीम दाऊद जो वो कर रही है सोशल वर्क और चैरिटी वर्क, वो भी अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा हमने साथ में मजे ही किए हैं यार, अच्छा ही गया है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much for that. Thank you so much for your kind comments. So with this, thank you so much for watching us here at Weekends with TD. I hope and wish that we overcome this pandemic soon. Till then, we'll be here trying to make your lockdowns bearable and fun. With that, I, your host, Royston Arshad, along with my team, thank you and wish you a very good night. Stay home and save lives. Bye-bye.